معروف ناقد اور افسانچہ نگار قاضی سلیم افسانچے کے بارے میں لکھتے ہیں، افسانچہ نگاروں کے لیے ضروری ہے کہ واردات کو مختصر الفاظ میں قاری تک پہنچا دے۔ واردات اس کیفیت کا نام ہے جس میں تناؤ اور تسکین کے عمل سے پڑھنے والا گزر جائے۔ یہ کیفیت سوچ میں جذبے کی آمیزش سے پیدا کی جاتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو افسانچہ چونکان نہ سکے وہ افسانچہ نہیں، واقعہ کا بیان ہے۔ اس لیے افسانچہ نگار کو اختتام پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ سندھی افسانچہ شکاری، اسے تحریر کیا ہے جناب زیب سندھی نے اور اردو میں ترجمہ کیا ہے جناب آکاش مغل نے۔ گاموں نے ہرن کا شکار کرنے اور ذبح کرنے کی ویڈیو فیس بک پر دیکھی تو اسے دلی رنج ہوا۔ اس نے ہرن کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے بھر آئیں۔ گاموں نے گیم انسپکٹر کو شکاری کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دی، مگر گیم انسپکٹر نے شکاری کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ گاموں شکاری اور گیم انسپکٹر کے خلاف رپورٹ درج کروانے تھانے پہنچا۔ گاموں کی بات سن کر تھانے دار نے زوردار قہقہا لگا کر کہا، ملک بھر میں روزانہ کتنے ہی لوگ مارے جاتے ہیں، ان مارے جانے والے انسانوں میں سے بہت سوں کی رپورٹ ہی درج نہیں ہوتی، اور اب سنتے ہیں عبدالرحیم نشتر کا افسانچہ تقلید۔ منزل تک پہنچنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے ہی فرقے سے ایک رہبر چنا جو کافی عقل مند اور ہوشیار آدمی تھا۔ اسے منزل کا بھی پتہ تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ چلنے لگے۔ راستہ تنگ تھا، دونوں طرف گہری کھائیاں تھیں۔ رہبر کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر پڑا گہری کھائی میں، اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اب ایک اور خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں۔ اسے لکھا ہے خالد بشیر تلگامی نے۔ یہ افسانچہ مکالماتی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ میں کون؟ اللہ کا بندہ۔ غار میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت۔ باہر آؤ، عبادت مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، مگر مجھے سکون یہیں پر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کسی نے میرے اور میرے رب کے درمیان مسلک کی دیوار کھڑی نہیں کی۔ اب ہم سنتے ہیں محترمہ سلمیٰ صنم کا افسانچہ بھیک۔ بڑھیا نے لنگر میں پیٹ بھر کھانا کھا لیا تھا تو بہو نے گھر میں 2 دن کھانا نہیں دیا۔ پوچھنے پر بیٹے نے کہا، یوں پیٹ بھر کھانا کھاتی رہو گی تو کمزور کیسے لگو گی، اور تمہیں بھیک کون دے گا؟
सलमा सनम का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सिला। उसने अपने जिस्म के टुकड़ों के ढेर लगाए और उन्हें अपनी खून जिगर से सेंच कर परवान चढ़ाया, मगर ज़िंदगी भर की रियाजत का ये सिला मिला कि आज वो एक बोशीदा खाट पर कराहती बीमार अकेली पड़ी थी और इसका मकान बाहर से मुक़फ़्फ़ज़ था। एक और अफसानचा सुनते हैं। इसे लिखा है अलहाज मोहम्मद अमजद ने, ओस्लो, नॉर्वे से। उन्वान है सपने टूट गए। हेड कांस्टेबल अल्लाह रखा की नौकरी अब पूरी होने वाली थी। 2 या फिर 4 साल फिर उसे रिटायरमेंट लेना ही था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके लिए वो कुछ कर नहीं सका था। बड़ा बेटा 14 क्लास पास करने वाला था। उसे कहीं नौकरी मिल जाए तो घर के हालात समझ सकते हैं। वो हम वक्त यही कुछ सोचता रहता। उसने चाहा था कि बड़े साहब से बात करे, मगर वो जानता था कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी बेटे को उसकी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे मुकाबले का इम्तिहान पास करना ही पड़ेगा। सुबह जब वो उठा और साहब के साथ अपने एक साथी शहीद के घर सलामी के लिए पहुंचा, तो बड़े साहब ने उसके सामने शहीद की बेवा को कागजात और इनामी रकम का चेक देते हुए कहा, शहीद के बेटे को महकमा में ही नौकरी मिलेगी। उसी वक्त अल्लाह रखा के जहन में एक बात गूंजी कि अगर मैं भी शहीद हो जाऊं तो मेरे बेटे को फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी, बीवी को बड़ी रकम का चेक भी मिल जाएगा, सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। या अल्लाह, मुझे भी शहादत दे दे, किसी दहशतगर्द से मुकाबला हो जाए। न जाने कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का हो, उसकी दुआ मुस्तजाब हो गई। 1 महीना तक रोना पीटना रहा और फिर घर में नई जंग शुरू हो गई। चहलम के बाद बेटी ने ऐलान कर दिया, अब्बा की इनामी रकम मुझे चाहिए, मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ एक दोस्त है, उससे बात हो गई है, वो मुझे सेट करा देगा। बेटी ने कहा, सारी दोस्त कह रही हैं अब तो एक नया आईफोन ले ही लेगी, मुझे आईफोन चाहिए। बड़ी बेटी जो चहलम के लिए ससुराल से आई हुई थी, उसने कहा, ससुराल में सब ताना देते हैं, अब्बा के पैसों से मुझे कुछ जेवर ज़रूर बना देना, 4 चूड़ियाँ तो ज़रूर। बीवी ने अपनी सूनी कलाई देखी और गहरी सांस ली। अगर अल्लाह रखा की रूह आसपास रही होगी तो उसने भी दुख भरी सांस ली होगी कि सारे सपने टूट गए। अगला अफसानचा पेश करने से कबल बताता चलूँ कि ये एक खुश आइन बात है कि अब शाम अफसानचा की रवायत जोर पकड़ती जा रही है। ये अलामत है कि अफसानचे की मकबूलियत में इजाफ़ा बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मुशायरों की तरह पाबंदी से महफिल अफसानचा मुनक़्क़िद हुआ करेगी। आज फेसबुक पर इश्तिहार नज़र आया। 8 अक्टूबर 2020 को करतासो कलम कानकी नाड़ा के ज़ेरे तमाम
शाम अफसानचा ऑनलाइन मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तकरीबन तमाम मारूफ अफसानचा निगार शिरकत कर रहे हैं, जिसका लिंक पेज पर दिया गया है। इश्तिहार के नीचे भी लिंक मौजूद है। उम्मीद है कि अफसानचे के शौकीन इस ऑनलाइन महफिल अफसानचा में ज़रूर शिरकत करेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी महफिल होना चाहिए ताकि सिनफ़ अफसानचा निगारी को फ़रोग़ हासिल हो। मोहम्मद बशीर मालिर कोटली का एक चुभता हुआ अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शराब। हवलदार उदास और मायूस अपने घर में दाखिल हुआ। बीवी उसे खाली हाथ देखकर बोली, सवेरे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं देसी घी का कनस्तर, ड्राई फ्रूट और ढेर सारा सामान लेकर आऊँगा। टोपी उतार कर मेज़ पर रखते हुए वो बोला, अरे मैं तो समझा था कि धार्मिक आश्रम पर हम रेड मारने जा रहे हैं, वो कोई राम रहीम जैसा आश्रम होगा, मगर बीवी सरापा सवालिया निशान बनकर बोली, मगर क्या हो? मगर वहाँ तो सिर्फ बैग मिले। बैग में एक दो जोड़ी कपड़े, तस्बीह, लुंगी, खाली लोटा और दातवन मिली, जिसको वो लोग मिसवाक कह रहे थे। अब एक और अफसानचा सुनी। ये मेरा तहरीर करता है। उन्वान है गुनाहों का बोझ। मौलवी साहब का खुतबा जारी था। किसी आलिम दीन के पास एक शख्स आया। उसने सवाल किया, हज़रत ये बताएं कि इसी शहर का एक काफ़िला हज बैतुल्लाह के लिए गया था। उसे वापसी पर डाकुओं ने लूट लिया। तमाम लोग कत्ल कर दिए गए। मुझे ये बताया जाए कि जो लोग अल्लाह के नाम पर हुक्म रब्बी की तामील के लिए गए थे, वो कत्ल क्यों हो गए? आलिम दीन ने जवाब दिया, उनका माजी देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग दुनियादार थे, गुनाहों की पोटली भरी थी। अगर ऐसा है तो ये मौत एहसान अजीम है कि गुनाहों का बोझ गर्दन पर ना रहा। खुतबा ख़त्म होते ही मैंने पिस्टल लिया और गुनाहों का बोझ ख़त्म करने सीधा उस दुनियादार के घर पहुंचा। अदब से नाम लेते थे, लेकिन फायर ना कर सका, क्योंकि मुड़कर देखा तो बाज़ार के हर आदमी का चेहरा उसी जैसा था। दहशत गर्दी के तनाजुर में आपने लातादाद कहानियाँ पढ़ी होंगी। मैंने भी पढ़ी, मैंने भी लिखी, लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसका कैनवस इतना बड़ा है कि जिसकी तशरीह के लिए कई लाख अल्फाज की ज़रूरत होगी। इस कहानी का उन्वान है शहर-ए खामोशां। इसे इकबाल खुर्शीद ने तहरीर किया है। बस रुक गई, आगे चेक पोस्ट थी, तलाशी ली गई, मुसाफिरों के आईडी कार्ड चेक हुए। एक बूढ़ी औरत के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद फिर पुलिस ने उस औरत को एक बस में देखा। इस बार भी शनाख्ती कार्ड नहीं था। फिर वार्निंग दी गई, मगर 4 दिन बाद वो फिर यूं ही सफ़र करती पाई गई।
पुलिस अफसर ने झुंझला कर कहा, अम्मा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं रखती साथ? क्योंकि उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। यहाँ शनाख्त करने के बाद ही कत्ल किया जाता है। सुना कैसा अनोखापन लिए हुए ये अफसाना है। अब इकबाल खुर्शीद के बाद हम चलते हैं रिजवान ताहिर मुबीन के अफसाना मजलूम पर। वहाँ दहशतगर्द मुखालफिन को शनाख्त करके मारते हैं, उसने बताया। फिर वो लोग अपनी शनाख्त छुपाते क्यों नहीं? मैंने कहा, उन लोगों ने शनाख्ती कार्ड रखना छोड़ दिया। कई ने अपना हुलिया बदल लिया, मोहल्ले तब्दील किए, दूसरी ज़बानें सीखी, मुख्तलिफ अक़ायद जानी। कुछ ने रवायती मलबूस का फ़ायदा उठाया और भारी दस्तार से अपने चेहरे छुपाने लगे, मगर फिर भी निशानावार कत्ल होते रहे। वो चुप हो गया। आखिर दहशतगर्द उन्हें कैसे पहचान लेते हैं? मुझे हैरत हुई। वो अपनी आंखें खुली रखते हैं जिससे पहचानी जाती हैं, उसने बताया।